Hello students, welcome back. So students, in today's topic we will be studying about concept of position, rest, motion, distance, displacement, uniform motion and non-uniform motion. So you might be thinking that today's topic gonna be so long as we will be studying about so many concepts. But I will try to make two parts of these topics. So students, without wasting any time, let's start with the concept of position. So students, what is called position? Means how will you define the term position? All right. So students, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, when you order something online on Amazon, Flipkart or something else, okay, any pizza burger, then you have to give your location. Okay, you have to say where are you, in the city, that what is your exact location. You don't just pay online and say okay, pizza वाले भैया just come here and give me pizza. He will also ask, sir आपकी location तो बताओ. So you will have to type your address. कुछ भी सामान मंगाना है अमेजोन पे तो एड्रेस लिखना पड़ता है, अपने आप तो नहीं आ जाता है ना वो आपके पास. और यू जस्ट से शेयर योर करंट लोकेशन यूजिंग व्हाट्सएप. तो इट मीन्स दैट पोजिशन इज समथिंग विच एक्चुअली लोकेट्स यू ऑन दिस प्लैनेट. इस पूरे प्लैनेट पे आपकी लोकेशन क्या है, वही तो आपका पोजीशन है. बट इफ यू रिमेंबर, योर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स you can say two person, okay, who has to visit your home. All right, so they just called you and said अच्छा यार तेरी position बता, मतलब कहाँ पे है location. And okay, one friend is in right side of your home, one is in left side of your home. Then the person who is in right side of your home, he will get your location in his left side. Okay, like I have to reach somewhere in my left side. So in my phone it will be showing turn left, so I'll turn left and I'll walk something 10 meter, 20 meter, whatever. All right, but if for the person who is in right side, he will get your location, turn right and reach your destination. It means both of your friends has visited your home. ठीक है, दोनों के दोनों आपके घर आ गए, बट दोनों को ही आपकी पोजीशन अलग अलग मिली, आपके घर के आने का रास्ता अलग अलग मिला. Means position is nothing but your location depending on frame of reference. Okay, suppose I have to go to Sangaria railway station. Okay, then I am the frame of reference because I have to go to Sangaria railway station. So if I'll open my map, I will be seeing like come outside of your home, then take left and station is right in front of you. But if you are in SKM school, then you will have to come out of your school, go straight for 50 meter, then take left and yes, you will be reaching to Sangaria railway station. अब कोई मार्केट के अंदर है, उसको स्टेशन पहुंचना है, तो उसकी कुछ अलग लोकेशन होगी. ओके, ये सभी लोग जो है, दे ऑल आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट बिकॉज दे हैव द सेम डेस्टिनेशन पॉइंट, बट दे ऑल हैव डिफरेंट पाथ. दे आर नॉट ट्रेवलिंग द सेम पाथ बिकॉज लोकेशन और द पोजिशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अरे अगर मंगल ग्रह से कोई आ रहा है विषण मास से, उसको भी आपका लोकेशन चाहिए, तो फर्स्ट यू विल हैव टू राइट इट अर्थ, देन इंडिया, देन राजस्थान, देन हनुमानगढ़, संगरिया, देन इट मे बी गुरु नानक नगर और ग्रामोत्थान विद्यापीठ. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट डेफिनेशन, जस्ट राइट पोजीशन इज नथिंग बट द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी मे चेंज विद डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, मतलब जो इसको आना है वो कहाँ पे है, इस बात पे डिपेंड करता है. ठीक है, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी स्टडीड. ओके, देन रेस्ट. यस, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है स्टूडेंट? जो आज का टॉपिक है ये कॉन्सेप्चुअल होने जा रहा है. ओके, द टुडेज टॉपिक विल बी कॉन्सेप्चुअल. बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. मोर ओवर वी विल बी जस्ट फोकसिंग ओवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशन, रेस्ट, मोशन. बिफोर आई टेल यू व्हाट इज रेस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग. देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट. देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट. इस दुनिया में कुछ भी रेस्ट पर नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है. रेस्ट हमेशा रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब ये रिश्तेदार नहीं कि रेस्ट किसी के मामा का लड़का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
रेस्ट इज रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स ये डिपेंड करता है। देखिए ये पेन है मेरे पास, आप बोलेंगे सर दिस पेन इज एट रेस्ट, ओके, बट आई विल से नो, इट्स नॉट एट रेस्ट। व्हाई? बिकॉज वेल आई एम होल्डिंग दिस पेन, आई एम एट दिस प्लैनेट इज रोटेटिंग। अरे अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सेस, अपने अक्ष पर अर्थ खुद घूमती है, ओके और फिर वो अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अबाउट सन, तो अर्थ तो सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूँ और मेरे हाथ में ये पेन भी घूम रहा है। इट मीन्स नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट। अरे अर्थ छोड़ो, सन भी अपनी जगह पे नहीं है, हमारी पूरी गैलेक्सी वो घूम रही है, पूरा हमारा जो ये मिल्की वे पूरी जो गैलेक्सी है वो घूम रही है भाई। अभी तक इवन वी आर नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स का सब कुछ नहीं पता है हमें, तो सब कुछ घूम रहा है, सब चल रहा है इधर उधर। सो देर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट। नाउ यू विल आस्क सर इफ देर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट देन व्हाई यू हैव रिटन दिस रेस्ट? गाइज रेस्ट मीन्स if a body is not changing its position, with respect to surrounding with time, it will be called at rest. It will be called at रेस्ट। अब आप बोलेंगे सर इतनी भारी भरकम डेफिनेशन लिख दी, इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम इट विल बी कॉल्ड एट रेस्ट। अभी डेफिनेशन तो यार बहुत सारी बातें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड दिमाग में बैठा लो। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जज है, मतलब जिसको डिसीजन लेना है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समटाइम्स वी से यार मेरे हिसाब से वो आदमी गलत नहीं है, यूजुअली वी से दिस सेंटेंस, यार दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यू आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलते हैं मेरे हिसाब से। समटाइम्स वी हैव टू चूज लाइक विच क्लोथ इज लुकिंग मोर गुड, वी से यार मेरे हिसाब से नीले वाला ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से नीले वाला ठीक रहा है, बिकॉज आई एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समवन अदर में से यार लेकिन मेरे हिसाब से तो पीले वाला ठीक है, दैट येलो शर्ट इज मोर गुड। क्यों? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम। अरे भैया टाइम तो लगातार चल रहा है। ईजिएस्ट डेफिनेशन इफ यू वांट टू टेक, इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एट रेस्ट। ये भी बोल सकते हैं टाइम के साथ नहीं बदला। अब देखो मैं यूँ आपके सामने खड़ा हूँ, 2-3 सेकंड हो गए, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ, तो टाइम के बाद में मैं बदला क्या आपके सामने? नहीं, तो आई एम एट रेस्ट। नाउ आई एम नॉट एट रेस्ट। क्यों? बिकॉज टाइम इज चेंजिंग एंड माई पोजिशन इज चेंजिंग। अब मैं ऐसे दिख रहा हूँ आपको, फिर मैं अभी ऐसे आ रहा हूँ आपके सामने, फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ। So that's called motion. So it's all about change in position. पोजीशन में चेंज होने से मतलब है पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग के हिसाब से हम सबसे छोटा आसपास देख लेते हैं सराउंडिंग। मुझे मतलब नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट सन, यू नो, मार्स, जुपिटर, नो, आई एम जस्ट ओनली, यू नो, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑफ माई सराउंडिंग। ये कैमरा, ये एसी, ये फैन, ये दिस टेबल है ना, ईच एंड एवरीथिंग, इनके रिस्पेक्ट में यानी इनके हिसाब से मैं, और टाइम के हिसाब से मैं यहीं पे हूँ। सो आई एम एट रेस्ट। जैसे ही मैं यूँ हुआ, सो माई डिस्टेंस फ्रॉम द एसी इंक्रीज्ड। तो पहले मेरा पोजीशन ये था और टाइम तो मैं रोक नहीं सकता, तो अगले ही सेकंड में मैं यहाँ आ गया। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू मतलब टाइम, आप देखो तो एसी से मेरा डिस्टेंस चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। सो आई वॉज इन मोशन। क्लियर हो पा रहा है? रेस्ट और मोशन में क्या है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम इट विल बी कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है? अच्छा, इसी को अगर मुझे मोशन बताना है तो व्हाट विल बी मोशन? व्हाट विल बी
मोशन। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग, बस इसको हटा दो, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, इट विल बी कॉल्ड एट मोशन। बस पोजीशन में चेंज होना चाहिए, पोजीशन में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो वो मोशन की डेफिनेशन हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। या सो स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज रेस्ट एंड motion both are relative quantities। या चलो ठीक है, both are relative। रिलेटिव मतलब क्या? रेस्ट उसके बुआ का बेटा है मोशन के। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रिलेटिव मीन्स ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों जो हैं किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। मीन्स एनी बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट और मोशन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स इसका मतलब ये है कि एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड, एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड at rest or at motion depending on frame of reference। मतलब रेफरेंस किससे ले रहे हो यार? रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? कई बार बोलते हैं ना डब्बाली से संगरिया 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर कौन सा पॉइंट है संगरिया का? मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट 30 किलोमीटर है कि जो सेंट्रल मार्केट है वो 30 किलोमीटर है, या ब्रिज वाली साइड है वो 30 किलोमीटर है? ओके, तो एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। देखो, आप सराउंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मतलब होता है कि ये वो आदमी जो डिसाइड कर रहा है। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट और इन मोशन। ओके, प्लीज पे अटेंशन। सपोज आई एम हियर, ओके, इट्स द गार्डन, ये एक मैदान है और मैं इधर मूव करने वाला हूँ। देर इज़ वन ऑफ अदर माई फ्रेंड, वो भी मेरे साथ खड़ा है, एंड वी बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल बराबर। वेन एवर आई विल टर्न माई फेस राइट, आई विल ऑलवेज सी हिम। ओके, इवन आफ्टर 3 मिनट्स इफ आई टर्न माई फेस, आई विल ऑलवेज सी हिम। अरे जब मैं और मेरा दोस्त दोनों गार्डन में बतियाते जा रहे हैं एक साथ, then we both are at rest with respect to each other. We both are at rest। क्यों? जब भी मैं फेस टर्न करूँगा राइट में, I'll see my friend, और जब भी वो मेरे अपना फेस लेफ्ट में टर्न करेगा, वो मुझे देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? We both are at rest with respect to each other। with respect to, ये बड़ा जरूरी है, किसके हिसाब से? बट गार्डन में मैं जा रहा हूँ, आराम से घूम रहा हूँ, और मेरा कोई फ्रेंड भी साथ में है, कौन है डजेंट मैटर, लेकिन एक मेरा फ्रेंड जो है वो बैठा हुआ है किसी मेज पे, किसी टेबल पे, और मैं यूं गया मेरे दोस्त के साथ बात करते करते, एंड आई डिडंट पे अटेंशन दैट वन ऑफ माय फ्रेंड इज सिटिंग देयर, और मैं बात करते करते अपने दोस्त के साथ मैं निकल गया आगे। देन एज कंपेयर टू दैट फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द बेंच, वी बोथ आर इन मोशन। वाई? क्योंकि पहले मैं उससे दूर था। ओके, मैं यूं जा रहा हूँ, वो यहाँ बैठा है यहाँ पे, मैं यूं जा रहा हूँ, तो पहले मैं दूर था, फिर उसके नज़दीक आया, फिर नज़दीक आया, और मैं निकल गया। तो इसके हिसाब से मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैं यहाँ पे था, फिर 2 सेकंड बाद थोड़ा और नज़दीक आया, फिर और नज़दीक आया, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ मैं मेरा इससे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। पहले दूर था, फिर नज़दीक आया, नज़दीक है, नज़दीक है, एंड फिर से मैं दूर हो गया। सो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस चेंज्ड। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम आई एम इन मोशन। बट मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड चल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम आई एम एट रेस्ट, बिकॉज ही विल ऑलवेज सी लेफ्ट एंड ही विल बी वॉचिंग मी। अरे दोनों बात करते करते जा रहे हो ना मार्केट में जाते हो, तो जब बाइक पे बैठते हो और साथ में अपने दोस्त को बैठाते हो, फिर मार्केट में चलते हो, तो आपके दोस्त से आपके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है क्या कभी? नहीं। देन यू बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बट विद रिस्पेक्ट टू अ शॉपकीपर, जब आप बाइक अपना बुलेट से ऐसे निकलते हो, तो उसके हिसाब से यू आर इन मोशन। वाई? बिकॉज एक टाइम पे आप इससे दूर हो, अगले टाइम पे उधर उसके पास पहुंचे, और फिर आगे निकल गए।
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब कि एनी बॉडी मे बी कंसिडर्ड एट रेस्ट एंड मे बी कंसिडर्ड एट मोशन डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट concept of distance and displacement. So without wasting time guys, distance is nothing but total path length, total path length, ओके पूरा जो रास्ता है, मतलब मूविंग बॉडी कितना रास्ता तय कर रही है, टोटल पाथ लेंथ। और ये जो है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि जर्नी की शुरुआत और जर्नी के आखिरी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। चलो इसके आगे ऐसा भी लिख सकता हूँ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, यानी कि पूरा रास्ता जो ट्रैवल किया गया है उसको आप डिस्टेंस बोलेंगे, और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज, सपोज आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम होम एंड आई wanted to visit my office which is 2 kilometer away from my home. तो मैंने अपनी बुलेट स्टार्ट की एंड for day 1 I directly went from my home to my office, so it was 2 kilometer. So the cost of my petrol was reasonable, है ना, 2 किलोमीटर के हिसाब से जितना लगता है उतना पेट्रोल लगा, ओके, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। सेकेंड डे I started journey from my home, but this time I visited the whole market, okay. Then I visited some other places and then I reached to my office. Okay, so this time will there be the cost of petrol the same as in the previous condition? When I started my journey from my home, I directly reached to my office without going anywhere else. The cost of my petrol was something, let's say 10 rupees. Next day when I started my journey from the same point and I visited a lot of places and ended my journey at the same point at my office. So will the petrol price will be the same? Petrol consumption will be the same? It will be 10 rupees still? No, it will be more than 10 rupees. Why? क्योंकि पेट्रोल तो ये कहेगा कि भाई जितना गाड़ी चलाओगे, जहाँ जहाँ घूमोगे, पेट्रोल तो खर्चा होगा। सो पेट्रोल जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीन्स आई स्टार्टेड माई जर्नी हियर, ये मेरा घर है, ओके, और ये मेरा ऑफिस है। तो अगर मैं घूम घाम के कैसे भी करके चला जाऊं, डिस्टेंस ये सारा हिसाब रखेगा। डिस्टेंस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ओके, ये हमेशा नज़र रखेगा। इट विल ऑलवेज टेक द कंसिडरेशन ऑफ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, ओके। तो ये यहाँ से शुरू करेगा, डिस्टेंस पूरा हिसाब किताब रखेगा, टोटल इज वेरी स्ट्रिक्ट, पूरे जगह का पेट्रोल का खर्चा निकालेगा। बट इन द सिमिलर केस इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, देन आई स्टार्टेड माई जर्नी हियर, दिस इज माई होम, आई एंडेड माई जर्नी हियर, दिस इज माई ऑफिस। डजंट मैटर व्हाट वाज द पाथ आई चोज टू गो, कोई भी रास्ते से चले जाओ, अगर मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया, इफ़ आई रीच्ड हियर, देन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, यानी जहाँ से जर्नी शुरू किया, एंड फाइनल पॉइंट, द पॉइंट वेयर द जर्नी वॉज एंडेड। यहाँ से यहाँ के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बट अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में इफ आई आस्क व्हाट विल बी डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी टोटल पाथ लेंथ। जब भी डिस्टेंस बोलूँ तो पेट्रोल को याद कर लो, वो कहाँ कहाँ गए सबका हिसाब रखेगा, ओके। इट इज़ वेरी शार्प। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज, कैन आई आस्क, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस
इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस? सोच के जवाब दो। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस? सोच के जवाब देना। नहीं बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। कैसे? देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यूँ। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि ओके आई जस्ट वेंट 2 स्टेप्स, किसी भी डायरेक्शन ले लो। सो मैंने कहा कि ये 1 2, सपोज 1 स्टेप वॉज इक्वल टू 1 मीटर। सो आई अगेन कम टू माई इनिशियल पॉइंट, I again come to my initial point where I am starting the journey. I said I am going 2 meter away. My 1 step equal to 1 meter. Okay, so 1 meter, 1 meter. Here I ended my journey. Now, what is my distance? 2 meter. अरे जहाँ से देखो 2 meter means total path length. So total path is 2 meter. So distance is 2 meter. Now what is my displacement here? That is also 2 meter. Ending point, starting point, minimum distance. So in this case, distance and displacement was equal. But now, again, let's say, I started my journey here. 1 step equal to 1 meter. So 1 meter, 2 meter, again this point, again this point. So the starting and ending point is same. So in case of distance, it is 4 meter. Why? 1, 2, again back, which is 3, again back, which is 4. तो डिस्टेंस देखो क्या हुआ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अरे सोचो यार, बाइक का पेट्रोल है तो बाइक क्या पेट्रोल सिर्फ जाने जाने में लगेगा, वो तो आने में भी लगेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस विल बी 4 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। वाई? बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दे बोथ आर सेम, सो देर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इससे आपने एक चीज़ सीखी बच्चों कि एक तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, बस वो हद से हद बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। दिमाग में बैठ गई ना बात, अरे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे सर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जर्नी एंड है, सो व्हाट विल बी डिस्टेंस? देन आई विल आस्क विच पाथ यू चोज। सो यू विल से सर दिस पाथ। मैंने कहा ओके, सो डिस्टेंस इज दिस मच बट डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। फिर आपने बोला कि सर अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, एंडिंग पॉइंट इज दिस, पाथ चोजन वॉज दिस, सो आई विल से ओके दिस इज डिस्टेंस। देन यू सेड सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं कहूँगा दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? इनिशियल फाइनल, सॉरी इनिशियल फाइनल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट स्ट्रेट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ओके, वन मोर थिंग, डिस्टेंस it can never be 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब हो सकता है। गाइज नेगेटिव को हम ऐसे लिखते हैं ना, नेगेटिव -v। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग द टर्म स्केलर एंड वेक्टर? बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू हैवंट स्टडीड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। सो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर होने की वजह से क्या है, इसमें डायरेक्शन का भी रोल रहता है। दिस इज वेक्टर, और ये जो है ये है स्केलर। अब देखो डिस्टेंस 0 क्यों नहीं हो सकती? एक चीज़ दिमाग में रख लेना, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। अच्छा, बोलेंगे सर वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, टाइम इज चेंजिंग बट वी आर मूविंग हियर, ओके वी आर नॉट मूविंग, सर आवर डिस्टेंस इज 0। आई विल से यस, योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0। वाई? बिकॉज यू आर स्टेशनरी। देन यू विल से सर अभी तो आपने बोला कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। So then I will again write it, I will explain it and say
डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। किसी मूविंग बॉडी की डिस्टेंस जीरो, अरे यार जब कोई बॉडी मूव हो रही है तो डिस्टेंस जीरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मूविंग है मीन्स कि ये पोजीशन चेंज हुआ है। इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन देयर इज सम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस तो जीरो हुआ नहीं, एंड इट कांट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस लाइक पेट्रोल। बट ऐसा होता है क्या कि मैं ऑफिस गया एंड देन आई केम बैक टू माई होम एंड आई रिक्वेस्ट टू पेट्रोल सर प्लीज आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एंडेड माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इट मीन्स देयर शुडंट बी एनी पेट्रोल कॉस्ट। वाई? क्योंकि जितना पेट्रोल प्लस में लगा उतना ही मेरे को माइनस हो गया वापस आते टाइम। ऐसा होता है क्या? नहीं। पेट्रोल बोले नहीं भाई, जितना चलेगा उतना पेट्रोल लगेगा। क्लियर? सो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। इट्स नॉट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। खर्चा बढ़ेगा, ओके, योर एक्सपेंस विल इंक्रीज। अरे कैब बुक कराते हो आउट स्टेशन तो आने जाने दोनों का लेता है, ठीक है, क्योंकि दोनों काउंट करता है। यू वोंट से सर आई बुक द कैब स्टार्टेड फ्रॉम संगरिया, आई वेंट टू दिल्ली, आई अगेन केम बैक, देन विल यू से हिम सर डोंट टेक मनी, व्हाई? बिकॉज आई अगेन केम बैक। आई होप इट इज़ क्लियर। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। तुम जितना चलोगे, किधर भी चलोगे, अगर चले जरा सा पोजीशन चेंज हुआ, आपके खाते में डिस्टेंस जुड़ेगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कैसे होगा? देखो मैं बताता हूँ। ये 0 पॉइंट है ना, देखो नेगेटिव कैसे होता है। सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन, और यहाँ से मैंने चलना शुरू किया ऐसे। ये 1 मीटर है और 1 मीटर पर फिर कोई पॉइंट है, और इस साइड में भी ये 1 मीटर है, ये भी कोई पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ प्लस और रिवर्स वाले डायरेक्शन को ले रहा हूँ माइनस। ये भाई साहब क्या हुए, यहाँ से पहले तो 1 सेकेंड बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, और फाइनली यहाँ पर आ गए। This person started walking and after 1 second he reached to this point, then this point, then again this point, then original and then this point. So what will be distance? No problem. Total path length जितना चला है उतना पेट्रोल लगेगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर. So distance in this case will be 5 meter. In this case distance traveled will be 5 meter. Okay, but what will be displacement here? Displacement means he has nothing to do with total path length. Initial point, final point. Initial point ये रहा, final point ये रहा. So this is 1 meter in negative direction. So minus 1 meter will be displacement. Minus 1 meter will be displacement. कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये पॉइंट्स आप नोट करो, साथ में एक ये पॉइंट भी नोट कर लेना स्टूडेंट्स, बड़ा ही जरूरी पॉइंट है। फिर मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ दैट ये बच्चे भूल जाते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। वन मोर थिंग, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। इनकी यूनिट्स दोनों की सेम है। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट और नॉट? कई बार क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो आई एम डायरेक्टली आस्किंग इज इट करेक्ट और नॉट। ये करेक्ट है कि नहीं है? ये बच्चों टोटली इनकरेक्ट है, टोटली इनकरेक्ट है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यार अगर ये लेस है तो 1 से ज़्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, दे कैन बी इक्वल। इट मीन्स कि 1 तो फिर भी करेक्ट हो सकता है, 1 तो करेक्ट हो सकता है बिकॉज दे कैन बी इक्वल, बट डिस्टेंस इज ईदर ग्रेटर और इक्वल। तो भाई अगर ये ग्रेटर है या इक्वल है, सो मैक्सिमम देयर रेशियो कैन बी 1
इट कैनॉट एक्सीड टू 1। अरे 2 होने 1 से ज़्यादा होने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा ना, इट शुड बी ग्रेटर, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओनली इन दैट केस द आंसर कैन कम बियॉन्ड 1, तभी तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत था। दिस में बी पॉसिबल, 1 हो सकता है और लेस देन 1, सो करेक्ट आंसर विल बी ईदर 1 और लेस देन 1। अब ये क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, माय क्वेश्चन इज, a person started his journey from his home. A person started his journey from his home. He traveled 20 meter in east direction. Write the question. Write down the question. Write कर दो. A person started journey from his home. He went. You can say he went 20 meter in east direction. यानी कि east direction में 20 meter चला. Then he turned left मुड़ गया, again traveled 40 मीटर 40 मीटर in left direction। अब you have to imagine left क्या है यहाँ पे। He again took left and this time he traveled 40 मीटर distance। He traveled 40 मीटर distance। ठीक है, 40 मीटर डिस्टेंस। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन दिस केस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों एक बात सुनो, यहाँ से पर्सन स्टार्ट हुआ, 20 मीटर ईस्ट में चला, 20 मीटर ईस्ट में चला। ही टुक लेफ्ट। जरा एक बात बताओ, अगर मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है और मैं लेफ्ट लूँगा ऐसे, तो मैं नॉर्थ की तरफ आ जाऊँगा। और 20 मीटर चलने के बाद में कितना चला यहाँ पे, 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर से कितना चला, मैं भूल गया क्वेश्चन। 40 मीटर के बाद कितना चला, फिर से 40 मीटर चला गया, चलो जो भी है। सपोज फिर से 40 मीटर चला लेफ्ट लेके, तो यार जब इधर फेस है और वो लेफ्ट लेगा, मतलब इधर मुंह करेगा, तो फिर से 40 मीटर आएगा। तो आपको पता है कि ये 20 है, तो 20 तो हो ही गया, और 20 और आ जाएगा। ओके, ओनली इन दैट केस इट विल बी 40 मीटर। अभी इसका मुंह इस साइड में है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, घर से कितना दूर है, जरा बताओ। इफ दिस इज 40, दिस इज 40, ये भी 40 है। दिस इज 20, सो दिस मच इज ऑल्सो 20। जरा सोचो, टोटल 40, ओके, दिस इज 20, देन दिस रिमेनिंग इज ऑल्सो 20। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस मीन्स रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 20 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 प्लस 400। ठीक है, कितना हो गया, 2000 समथिंग। नाउ यू कैन सॉल्व, यू कैन टेक 100 आउट, ओके, मेक इट 10, सो 10 रूट 20, वट एवर, कैसे भी ले लो, है ना, 2 रूट 10 ले लो, जैसे भी 2 रूट 5 एक्चुअली। तो ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। But in this question, if I ask what is displacement and distance, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे, देन विल एंड द टॉपिक। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। बच्चों, डिस्टेंस इज एक्चुअली टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ही टुक 20 मीटर, तो मीन्स खाते में सबसे पहले 20 मीटर लिख लिया गया। देन 40 मीटर, डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, तो 40 मीटर चला। देन अगेन पूरा 40 मीटर, तो 40 मीटर चला। सो 80 और ये हो गया 100 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड। सो 20 प्लस 40 प्लस 40, 100 मीटर। बट what will be
डिस्प्लेसमेंट तो भैया इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। इनिशियल और फाइनल ये 0 पे है बिकॉज ओरिजिन है, एंड दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ 2000, तो रूट ऑफ 2000 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो एक देयर इज अ पर्सन हु इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। एक व्यक्ति जो है वो आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे ही इज रनिंग, देन व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यू नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये दोनों आपको बताना है। नंबर 1 आफ्टर हाफ साइकिल और नंबर 2 आफ्टर फुल साइकिल। चलो आफ्टर हाफ साइकिल बताना है, आफ्टर फुल साइकिल बताना है, बताओ कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, जल्दी, बस लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, so what will be डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ द साइकिल। बच्चों अगर यहाँ से रनिंग करना शुरू किया तो हाफ साइकिल बाद में वो यहाँ पहुँचेगा। सो हियर द डिस्टेंस विल बी टोटल पाथ लेंथ, जिस रास्ते से गया है उसका पूरे का हिसाब किताब। सो दिस विल बी डिस्टेंस। नाउ टोटल सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, सो दिस मच डिस्टेंस इज ओनली पाई आर। अरे समझ गए, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस टोटल इज 2 पाई आर, तो हाफ इज पाई आर। सो आफ्टर हाफ साइकिल जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। What will be displacement? Displacement will be shortest distance between initial and final. तो भैया shortest तो सीधा होता है हमेशा, this will be displacement. If this is radius r, तो भैया this is also radius r. अरे साइकिल की तरह समझो, साइकिल के टायर की तरह, हर तरफ रेडियस r है, कहीं भी चलो रेडियस r होगा। So if this is r, this is also r. So the shortest distance is 2r. So here डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में सीधा गैप इज 2r। आफ्टर फुल साइकिल के बाद बताओ, तो फुल साइकिल के बाद में डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दोनों बताना है। तो जब फुल साइकिल होगा तो ये यहाँ से शुरू करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो पूरा हिसाब किताब क्या होता है, ये पूरे की पूरी डिस्टेंस 2 पाई आर, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ऑफ साइड 2 मीटर। नजर आ रहा है बोर्ड आपको? वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। 2 मीटर का है ये। आप बोलेंगे कहाँ पे है सर 2 मीटर का? ये लो भैया, ये रहा ये। सो व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? एवरी एंगल इज 60 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर सेम। ठीक है, तो भाई अगर ये 2 मीटर है, सो वी नो दैट कि दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, इसको मिटा देता हूँ। A person started his journey from point A and he reached point C, है ना, this is point C। C point जो है वो ये वाला है, this is, है ना, इसको C point बोल रहा है।
ठीक है. सो एंड यूजिंग पाथ ABC, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग path ABC, person reaches from, using path ABC, person travel from A to C. ठीक है. So what will be distance and displacement? Find distance and displacement. Find distance and displacement. आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और ये आपको नज़र, ठीक है. ऑलराइट. सो क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ. वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर. ओके, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C. Person starts his journey from point A and end its journey at point C. What will be distance and displacement in this case? Okay. So guys, कैसा लगा आपको? स्क्रीनशॉट ले लो इसका. So कैसा लगा आपको ये लेक्चर? I hope you got satisfied in this lecture. I hope I made things clear to you. I hope you understand the concept of position, rest, motion, distance, displacement, and also you're gonna answer this numerical in your comment box. Okay, so students, it was all about in this lecture. In the next video we will be studying about uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity and acceleration. So till that students, thank you.